everyone, welcome to our PD and this is Shubhya. So this video is for all the ones who are preparing for any interview and particularly for the campus placement. Now you see there are certain myths which a student generally possess, and that's the topic of today's discussion, which is a part of HR Ready series. So I've started a HR Ready series where I'm discussing one by one the hot topics which a student generally faces. And today's topic is about the interview myths busted. So here through this video I'm going to debunk the 15 myths which a student generally has and how to cater the best of the answers in those cases. Let's start one by one. Before that, I'll just discuss a brief. The myths like always say yes to relocation. Many students feel that yes, if the person asks me, आप relocate करने के लिए ready हैं? तो I always have to say yes. I'll provide you a better answer to it and you don't need to say always yes for the relocation. Next is not for the relocation, not to relocate. Wear a suit, no matter what. Many students feel मैम ब्लेजर डाल के जाना पड़ेगा, कंपल्सरी है, बाहर बहुत गर्मी है and you are trying to put a blazer. Wrong thing. Obviously, it's not compulsory, but yes, wearing the confidence is very very important apart from the best of the outfits you do. तो confidence, smile, उसके साथ आपको ये भी चीज़ें carry on करनी है apart from the best outfit, but उसमें blazer बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मल दिखना है, ऐसे करके रहोगे तभी सेलेक्ट होगे, that's not the criteria. The third one here I'm going to list is give the perfect answer. What's a perfect word even? Like perfect answer कौन सा exist करता है? For you something else would be perfect, for me something else would be perfect. So there is never a perfect answer and don't even think that I have to just provide the perfect answer. It's providing natural answer with the best of the confidence and using the right jargons. वही चीज़ों की आपकी practice होनी चाहिए. Let's get started. We are going to talk about the very first myth and that is you must always say yes to the relocation. कि blindly मैं yes कर देता हूँ, वो पूछेंगे adaptable हो, flexible हो, इस जगह पे relocate कर दोगे, yes कहूँगा तभी नौकरी देंगे, otherwise they don't. No. You should say otherwise. The correction is I am open to relocation depending on the opportunity and the long-term plans. Also you can say is that I prefer to stay in my city for personal reasons but I'm flexible with the remote opinions. So it's always आपका कहने का तरीका that matters the most. ये नहीं कि मैम जहाँ बोलोगे वहाँ हो जाएंगे. मैम long term commitments प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेरी प्रेफरेंस ये है, बट हाँ इफ़ इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सूटेबल फॉर माई करियर एंड द अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी बिग फॉर मी, आई वुड नेवर से नो फॉर दैट इवेंट. सो यू हैव टू जस्ट डायरेक्ट योर कम्युनिकेशन इन अ राइट डायरेक्शन एंड दैट इज़ वे यू हैव टू से कि आपको हमेशा येस नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ों की प्रेफरेंस भी बतानी है. बी ऑनेस्ट इन योर आंसर्स, राइट. सेकेंड इज द लॉन्गर द CV, द लॉन्गर द रिज्यूमे द बेटर. Many students feel this thing कि अगर इंट्रोडक्शन में भी I've seen that they feel कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए तभी मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा. नहीं, that's not the criteria. आप खुद सोचिए that you are interacting with the person for 15 minutes. अगर 2, 2.5, 3 मिनट से ज़्यादा आप ही अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, the person has to cut you out. तो कट करने से अच्छा है कि आप अपनी एक बिल्कुल प्रिसाइज, कंसाइज, वेल बुलेटिन पॉइंट्स में अपनी इंट्रोडक्शन को बोलिए और सेम वे इज अप्लाइंग टू द रिज्यूमे विच यू कैरी. अननेसेसरी पॉइंटर्स नहीं चाहिए होते, कुछ बुलेटिन पॉइंटर्स चाहिए होते हैं जो आपको उस जॉब के क्लोज लेकर जाते हैं. मिस्टेक विच स्टूडेंट्स फील इज कि अननेसेसरी डिटेल्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स, ये चीज़ें, हर तरह के सर्टिफिकेट्स जो भी आपने अर्न किए हैं वो सारे बताने. बेस्ट इज स्टिक टू वन पेज फॉर फ्रेशर्स, यूज बुलेटिन पॉइंटर्स, keep it relevant to the job role and focus on the achievements. Remember when it is one page and there is a picture and there is a bulletin pointers presented, obviously it's a very impressive resume. So you have to make the first impression should be very good, so you have to work on it. Let's go with the third one. That is HR round is just a formality. कईयों को लगता है यार टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं, HR तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे बैठना पड़ेगा, just nothing else is going to be tested. No, there are certain soft skills. अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो obviously the person is going to check you on certain soft skills too. आपकी determination, leadership qualities, आपकी coordination, cooperation. अकेला अच्छा काम एक वे है, बट आपको एक असेट बनना है तो टेक्निकल के साथ सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. तो HR आपको यही टेस्ट करता है. तो HR इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, बट येस यू हैव टू टेक दैट प्रिपेयर फॉर HR राउंड्स. यू हैव टू फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स, यू हैव टू फोकस ऑन द कंपनी नॉलेज, कल्चरल फिट क्वेश्चंस एंड द करियर गोल्स. सो इट इज़ नॉट ओनली कि वेग आंसर्स आ जाएंगे, कुछ भी बोल दूंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पूछी जाएगी.
many questions about your city, why you're preferring this job, how you're long planning to work with us, about your hobbies, about your SWOT, about your biggest achievement, regret, knowing about the company, why particular this company, mission vision of yours, aligning with this company, about your relocation plans, all comes in HR. So why won't a person judge you very nicely in HR? So don't think that HR is just a formality. Fourth one, accept the first salary offer or lose the job. No, not the case ever. You just feel कि जैसे ही फर्स्ट सैलरी का कुछ भी उन्होंने कोई भी फिगर बोला एंड यू हैव टू से येस. जैसे रिलोकेशन पे येस बोलेंगे तभी जॉब मिलेगी, सैलरी पे येस बोलेंगे तभी जॉब मिलेगी, नहीं. एटलीस्ट थिंक कि मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या एक सही डायरेक्शन जा रही है. Keep your proposals. What else would be there? They would say no. They would you guys would come to a mutual consensus, but not be very much directionless or be opinionated in your approach, right? So the best is that based on the average salary ranges, you can say based on the market standards and my skills, I was expecting something around this, and is that possible, and in a very sweet and a polite manner. It's not like yehi salary chahiye, mujhe is pe kaam karna hai. No. Be on the grounds ki I have this much experience. If you don't have experience, ma'am, the technical, you can say the market standards are this much and I was expecting something to this. So if it is possible, can we make to this number, or we can come to the mutual, like in between some figure could be quoted. So that's the best way to handle such situations. Next is technical skills matter. Only technical skills matter in an interview. I just टोल्ड यू अबाउट इट कि HR सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि कल को आपको टीम में काम करना है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, अकेले ही सोलो नहीं प्ले करना है. एंड फॉर दोज ओनली टेक्निकल स्किल्स डज नॉट मैटर, बट विद इट the other skills, like you're working in a group project, you're leading a team of 4, you have to ensure timely delivery despite the last minute changes. So yes, there are certain communication, attitudinal things, everything comes in place, not only one thing. तो technical तो important है ही है, लेकिन उसके साथ आपके soft skills भी उतने ही important है, right? But हाँ, technical को अच्छे से तैयारी करके ज़रूर जाए और अपने soft skills को भी. Next is more certifications equal to better candidate. Now this thing what multiple people feel is, जब वो अपनी introduction में बताते हैं, they keep on telling हमने ये किया वो किया. You need to be considering कि मेरे स्टार पॉइंट्स क्या हैं. सिमिलरली इतनी सारी सर्टिफिकेशंस की रेलिवेंस नहीं है. ओनली टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच मेक यू क्लोजर टू योर इंटरव्यू, राइट? जैसे कोई आपकी प्रोफाइल है, आपने उसी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट किया है, वो बताओ. अननेसेसरली आप कोई भी वैलिड इनवैलिड चीज़ें बता रहे हो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो ज़्यादा नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्वालिटी. Choose 2 to 3 certifications relevant to the role and explain how they helped you in the projects on skills. क्योंकि कल को आपको उसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम आना है. 8th में क्या स्कोर थे, 10th में मेरिट आई थी नहीं आई थी, कहाँ मैटर करेगा कि आपके प्रोफेशन के साथ मेरे कितने स्किल सेट है. तो उसी तरह से यू हैव टू फिगर इट आउट कि कहाँ हमने कौन सा अपना सर्टिफिकेशन को चूज़ करना है, किस प्रोफाइल के साथ मैच करना है, एंड द सेम वे द रिदम गोज ऑन इन एन इंटरव्यू. 7th is you must answer every question perfectly. कभी भी नहीं होता ऐसा. थिंक अबाउट इट. अगर इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने 6 बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर किए और अगर नहीं भी आते हैं, यू सिंपली से सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. मुझे गेस करने का टाइम देंगे तो मैं ज़रूर गेस करना चाहूँगा, लेकिन मुझे आंसर नहीं पता है. ये कहना गलत नहीं है. दे आर जस्ट चेकिंग योर रियल पर्सनैलिटी, नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग. देयर इज नेवर अ पर्सन जिसको सब कुछ आता होगा. इट इज़ द वन हु इज़ एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ वेरी नाइसली. आपको प्रेजेंटेशन करनी होती है, अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से पेस में रखना है. व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन से इज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट राइट नाउ, बट हियर इज हाउ आई वुड अप्रोच टू इट. दिस शोज योर ऑनेस्टी. आपकी ऑनेस्टी शोकेस होती है. और ऑल्सो इवन इफ यू डोंट डू समथिंग, हाउ वुड यू बी हैंडलिंग दिस सिचुएशन. डोंट गेट पैनिक टू इट. इट्स नथिंग, कोई नर्वसनेस वाली बात नहीं है आपकी, राइट? पैनिक होना, ब्लफ करना, फॉल्स आंसर्स करना, ये गलत है. यू शुड नेवर से आई डोंट नो. अभी मैंने बताया आई डोंट नो. नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं बोल सकते हैं? इफ़ यू डोंट नो समथिंग, say very politely, sorry ma'am, I don't know about it, I'll read about it. Sorry ma'am, I cannot recall about it, I'll just have a look about it. तो आप किसी भी तरह से उसको केटर कर सकते हैं अपने आंसर्स को. पोलाइटली सेइंग समथिंग कि मुझे नहीं आता है, एक्सेप्टिंग द फैक्ट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. तो आप ब्लफ नहीं कर रहे हैं, विच इज़ बेटर. आप आई थिंक, मे बी, ऐसे लंबे आंसर्स नहीं खींच रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है. So that's an area I'm currently exploring. I would love to learn more about it. I've done much of the research, but I'm not aware about this of the opinion. So that is, it showcases your curiosity, your honesty towards that thing. तो आप ये बोलिए.
नेक्स्ट इज योर फॉलोइंग अप आफ्टर द इंटरव्यू लुक डेस्परेट. नो, दैट्स नथिंग लाइक दैट. आपने किसी इंटरव्यू के साथ, आपने इंटरव्यू की है, प्राइवेट सेक्टर में थे आप, और आपने किसी HR से आप पूछना चाहते हैं कि कहाँ मेरा क्या रिस्पॉन्स है. इट्स नॉट अबाउट डेस्परेट, इट्स अबाउट योर ओन. यू हैव योर ओपिनियन, यू वांट टू आस्क अबाउट इट, यू हैव योर क्वेश्चन. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बल्कि आप थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग बैक. इवन इफ यू विल रिवेट, और अगर आप इस तरह से मैसेज ड्रॉप इन करते हैं, इवन द HR feels that you are interested in that particular job. So it's a very good way to interact and get the feedback of your stuff only. And the person would politely say you the answer. Next is fresher resumes don't need tailoring. No, it's not कि एक ही resume है तो वही बेस्ट है और वही मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स या कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहा हूँ वही बना रहेगा. नो, there are certain keywords and certain, you would say, the project descriptions which should match with each job description. तो वही highlight कीजिए जो आपके roles और responsibilities के साथ highlight करता है. Next is talking about the weakness will cost you for the job. They do ask you कि आपकी weaknesses क्या हैं, आपकी strengths क्या हैं. आपको लगता है कि मैं weakness बता दूंगा तो शायद select नहीं करेंगे. No, tell about the weakness. Maybe you lack artistic expressions, maybe you are very straightforward in nature, maybe you are the person that is very workaholic and who does not take much of the time for the family. आपकी बहुत सारी, maybe you're a big time foodie और आप अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पाते हो, या आप अभी अपने करियर की वजह से अपनी एक्सरसाइज और वो चीज़ों को स्किप कर रहे हो ताकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, वो भी आपकी वीकनेस है. देयर आर लॉट्स ऑफ वीकनेस विच यू कैन मेंशन, एंड एक्सेप्टिंग योर फ्लॉ इज नेवर बैड. एक्सेप्ट योर फ्लॉ, वर्क ऑन इट, एंड हाउ you did work on it, how did you overcome that actually matters, right? So I used to struggle with time management, but using planners and has really helped me improve. तो कैसे आपने improve किया, क्या करते थे पहले, वो important है. Only CGPA matters in HR interviews, and I've seen many students when they come for the introduction वो अपनी CGPA ही highlight करते हैं. आपके पहले, अगर आपने 8.6 लिया, आपके पहले में 9.2 लिए, तो आप तो पहली कंपैरिजन सेट कर रहे हो किसी और के माइंड में. तो नेवर थिंक कि अकेला CGPA मैटर करता है. नाउ रिवाइज ऑल द थिंग्स. जब आप किसी भी पर्सन को हायर करते हो, पर्टिकुलरली इन द कैंपस प्लेसमेंट, दे आस्क अबाउट योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज दे वांट अ पर्सन हु इज़ गुड इन टेक्निकल्स, हु इज़ ऑलराउंड पर्सनालिटी, टेक्निकल भी कर रहा है, बाकी किसी NGOs या क्लब्स के साथ या एसोसिएशंस के साथ एस्टैब्लिश है, क्योंकि दे वांट अ पर्सन हु इज़ गुड इन बोथ द स्किल सेट, नॉट ओनली इन वन. तो डोंट थिंक कि अकेला CGPA ही मैटर करेगा. आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एड्रेस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दिस ऑल द थिंग्स एक्चुअली मैटर, राइट? सो हाईलाइट इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क, लीडरशिप एक्सपीरियंस. Many companies value experience over the marks. Next is you must speak fluent English to get the job. See, it is not about fluency. It is keeping your pointers in a right way. अब बहुत अच्छे से इंग्लिश हाई फाई बोल रहे, इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए नहीं जा रहे हो. या इन कैंपस प्लेसमेंट इंग्लिश इज कंपल्सरी, राइट? इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ प्रेफर्ड इन मेनी ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, राइट? अगर आप PSUs के लिए जा रहे हो थ्रू द डायरेक्ट, यू कैन से स्कोर कार्ड के थ्रू, तो ऑब्वियसली इनके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपका पब्लिक और PSUs में, सॉरी फॉर पब्लिक, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर एक्सेप्टेबल, राइट? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप दोनों में जा सकते हैं, बायलिंगुअल जा सकते हैं. बट इफ़ आई आस्क, क्योंकि इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी चाहिए, नहीं. इंग्लिश में आपके आंसर्स की एक होता है, यू आर कम्युनिकेटिंग, द पर्सन इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट आउट. आपको कोई फैंसी वर्ड्स नहीं बोलने हैं, आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं है, तो डोंट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं फ्लुएंट नहीं हूँ तो मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा. टॉक इन इंग्लिश, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. practice to keep your pointers in English, that is important, but not a fluent. आप छोटे, you speak slowly, clearly, it's okay to make small mistakes, daily conversations कीजिए. आपकी clarity और confidence मैटर करता है, accent मैटर नहीं करता है. So it is not about accent. Like if you speak English every day, आपका कोई friend होगा जो बाहर चला जाएगा, उसका accent change होएगा because he is habitual to speak about it. वो pronunciations पे, linguistics पे focus करना शुरू कर देते हैं, and that is why the accent of the person changes. It's not the person makes accent of his own, never. इट इज़ द सेम वे. अगर आप उस चीज़ को रोज़ अडैप्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपके राइट वर्ड्स की राइट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी और उसी से आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. तो आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आपको कंटेंट को एक रिदमिक में रखना है, छोटे सेंटेंसेस बोलो, क्लियर से बोलो, क्लैरिटी से बोलो, वो मैटर करता है. कॉन्फिडेंस से बोलो, दैट मैटर्स, नॉट योर फ्लुएंसी. ऑन द बेस ऑफ फ्लुएंसी यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड गाइस. यू मस्ट से येस टू एवरी कंडीशन टू गेट हायर्ड. नो, अभी मैंने इतने केसेस बता दिया आपको कि आपको जॉब रिलोकेशन, सैलरी के रिलेटेड कोई आंसर नहीं आता है, तो हर आंसर की हर चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दे वॉन्ट अ पर्सन जो एक्सेप्ट, जो अपने पॉइंट्स को रख रहा है, ओपिनियंस को रख रहा है, एड्रेसेस द थिंग्स इन अ नाइस मैनर. सो इट इज़ नॉट टू से येस टू एवरी कंडीशन.
क्वेश्चंस पूछो, क्लैरिफाई करो वर्किंग आवर्स, शिफ्ट टाइमिंग्स, रीलोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पोलाइटली बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको भी तो वहाँ पे काम करना है, तो आपको भी तो अपने उनके पॉइंटर्स सुनने चाहिए. तो या इट्स बोथ द साइड्स, राइट? Dennis, HR can judge you only by the interview. That's a really wrong perception, you know. A person judges you on a professional digital presence too. It is about LinkedIn updated, about your using a professional email ID, be polite in the emails and clean up your online footprint. So yes, it's not only on one case, it is on the multiple grounds where HR actually judges you. So make sure that you are able to address all these things. आपके myths अभी तक debunk हो चुके होंगे, bust हो चुके होंगे I think, and I hope that these videos are quite informative and you keep on listening to these videos, keep on, you can say, if you miss any of the videos related to HR Ready series, please check those videos and have your own opinions if you want to answer anything, any question, क्या पूछना चाहिए, any of the topic of your interest, so that I can bring that topic for the discussion next time. All the best guys, keep preparing and take care and have a good day. Bye bye.